There is so much good news. So I have to ask you, sir, Bengaluru-Chennai highway nearing completion, Delhi-Mumbai, Bengaluru-Mysore, Jammu-Srinagar. What's the status, sir? I'm told good news is coming our way in the next few weeks and months. The Bangalore-Mysore is very important as far as the tourism is concerned. And there is a maximum traffic going from Bangalore to Mysore. The other important problem is traffic jam and pollution in Bangalore. So now it is a time for Bangalore to need alternative development for IT industry. And on this road, particularly, which we are already in the completing process, the distance is 116 kilometers. And the old road, we have already constructed 52 kilometer new bypasses. Actually, I remember the shooting of Sholay on that spot where there was the Gabbar Khan and Hema Malini's dance was there. And the same site I was there. And at that time, when I just coming from helicopter, I received the call from Hema Malini with some work. So I was telling to her that I'm in Ramnagar. So now this is with Bangalore to Mysore will be only with 1 hour. And also I got appointed to inspect Ring Road of Bangalore, that is of costing 17,000 crore. Out of 4 packages already in the verge of complete, we are going to complete it, but there are 10 packages. Then Chennai to Bangalore, it is very important. Now it will be possible within 2 hours from Chennai to Bangalore. So 10 packages are there, out of which 65% work is completed. And this year, I am confident that before end of April, May, we will be in position and to inaugurate that. And before that, then February, we are asking time from the Prime Minister to inaugurate Bangalore-Mysore highway. Fascinating. Nitinji, my question to you is, there is a phrase in English, charity begins at home. And I recall that your constituency that you come from, that is Nagpur, has made a mark in Guinness Book of Record. May I ask you to please explain to the audience what exactly you did building infrastructure? Actually, this year, it is really a great thing. It's not only my credit, it is going to credit to my team that we have 6 world record. And that in Nagpur, that is the elevated road, double-decker flyover. The ground level, the road is there. Then first level, the flyover, and second level is metro. And it is to be the longest distance in the Asia, this double-decker. That is the reason that we got this Guinness Book of World Record certificate for that. At the same time, in Mumbai-Delhi Express Highway near Vadodara, we have already have a record of concrete road, record with time. In 22 hours, we have completed that. Then Solapur, Vijapur also, 32 kilometers within 22 hours we have completed, single lane bitumen road. Then in Amravati and Akola, between the line, also there we had 2 world record already we had done. So today our contractors, our engineers, our consultants, now as far as the international standards are concerned, I am really happy that we are equally competent and we are doing at the same time our cost of construction is less and some area where our quality of construction is better than international standard. Then we are using alternative materials. Yes, that's a round of applause. Dr. Gupta is here because this is very important, that ecology and environment. So now we are using this waste rubber tire. I requested Honorable Bhupendra Yadavji to give permission for import of waste tire from the world. And now this bitumen rubber powder is now we are using in bitumen, 15 to 20%. The cost of the bitumen is 50 rupees per kg and powder is 25 to 30 rupees. So it is cost effective, giving good effects to the road, and also it is quality wise it is going to improve the road quality and riding quality. So the rubberized bitumen. Then second thing where we are going to launch now, that is the problem facing Delhi people because of burning of Parli.
Now we received the technology from Central Research Road Organization CSIR, and we have now accepted that technology, making bio-bitumen from Parli, rice straw. The 70% from Parli we are making bio-bitumen and 30% as biochar. That is organic carbon, which is very important in agriculture. Now the most important thing is, in our country we need 80 lakh ton of bitumen, out of which 50 lakh ton of bitumen is coming from Indian refineries and 30 lakhs ton of bitumen we have to import. Now our farmers, in the small area there is a tractor molded unit, they can make bio-bitumen and it is proved to be better than petroleum bitumen. 8 features are there. And so that bitumen will be used in Uttar Pradesh, even in Bihar, Haryana and Punjab, everywhere the Parli is available, rice straw, and we convert it into bio-bitumen, and we are encouraging and we will give the guarantee that we will purchase that. And also in Panipat, there is a successful experiment. From Parli, they are making 1 lakh liter of bioethanol per day and 150 ton of bio-bitumen from Indian oil. And I given them promise that we will purchase that. Okay. So this is our contribution towards ecology and environment. And my highest priority for now is how to protect the ecology and environment, how we can reduce the air pollution, water pollution and sound pollution. Okay. We're going to ask you about ethanol and green hydrogen in just a bit, but Gadkari ji, on one fundamental premise that there was a time in India where finances and land acquisition was the biggest problem in road construction. Today, it is not a problem. You're building these highways with no protest. In fact, the locals are very happy you're building the highways. How have you cracked this problem, sir? Actually, frankly speaking, 2013, the Parliament has passed the bill, Land Acquisition Act. And now we are giving such attractive prices to the farmer. Now people are coming to me. Once upon a time, there was a period that people was telling, don't make highway on our land. Now people are coming to me, please purchase our land for highway connection, because they are getting 1.5% more price for the land. And that is the reason farmers are very happy. But now we are working on the scheme. The road side we can make logistic park, industrial clusters, smart cities, and where we will involve that farmer and we will give him the equity. And out of which 40% land with the government, 60% with it, and we will develop the infrastructure and we will sell that land and the farmers will get the benefit from that, where we want to make him more economically strong. And that is exactly in my mind, that the rural agriculture economy, where it is time for the country, for Atmanirbhar Bharat, to make them strong economically. जी नितिन जी, जहाँ तक बात की जाए, अमृत काल का वक्त चल रहा है और इसमें अगर बात की जाए तो हाईवेज के जरिए रोजगार निर्माण करना, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेयर डू यू सी कि इससे बहुत ज़्यादा रोजगार, और जिस तरह से युक्राय होता है कि रोजगार नहीं है, तो उसको लेकर आपके क्या प्लान है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ रोड बनता है वहाँ डेवलपमेंट होती है। और मैंने अपने ऑफिस में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य लिख के रखा है। उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। द प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग फ्रॉम द रोड। If anyone want to establish his industry, he need 4 important things: water, power, transport and communication. Without that we cannot get industry. Without industry we cannot get capital investment. And without industry and capital investment we cannot create employment potential. And without employment potential we can increase per capita income and GDP growth. And the most important thing, without development we cannot eradicate the poverty. So that is the reason the road is for prosperity, for the people who are socially, economically, educationally backward. And that is exactly is very beneficial. All over in the world, it is the experience that when we construct the road, it is to be benefited to the people who are roadside villages. Their agriculture is there, they are getting good value, and the development process is started. Sir, on the issue on FASTag, sir, how is the rollout? Are we nearing cent%? And when are you going to roll out to geotagging? How is this reduced the time in toll booths? Have the collections gone up?
Now it is something 98 point something. And this 2% is never going to achieve. Because there is a different reason for that. The people who don't want to pay GST and other thing, taking the material with illegally, they do not register themselves because in fast track everything is they pay the toll. So that is the problem. But because of fast track, our toll income is increased by 7,000 crore. And now we are in the process, probably within 3 months, we will be in the process to start it, that satellite based automatic number plate system. Then because of fast track also we will take the reading. When anyone who enter somewhere, we will register by taking his image, photograph. And whenever he leave the road, again it will take it, and that amount, whatever to be exactly charged for that, it will be subtracted from his bank account. So he don't need to stop anywhere. So now this system is we are going to launch within 3 months. So there will be no toll naka, there will be no obstacle. And now already from 2018, we have started new number plate. The old vehicle they don't have. But now we receive the technology that the camera will work on the old number plate and new number plate. So this automobile number plate system related to satellite, it can be really a most important scheme. We have already have all the experiments successfully. Even some of the road we are actually doing experiments, and within 3 months we will start. Then there will be no problem. 100% you don't need to stop anywhere, and it will be easily possible for you. जी नितिन जी, जहाँ तक बात की जाए, विकसित देश की आकांक्षा विकसित हाईवे के जरिए ज़्यादा आसान हो जाती है। समृद्धि महामार्ग, मराठी में कहते हैं विकासाचा महामेरू। तो ये समृद्धि किस तरह से हाईवे के जरिए आप देखते हैं? और इसको Sir, it's so miraculous. Now it was from Nagpur, because you are from Nagpur, you know it. Nagpur to Mumbai takes 24 hours. Now it is 6 hours. Now from Aurangabad, we are making one road, express highway access control to Aurangabad to Pune. So it will be 2 hours. And Pune ring road, we will going to connect to Bangalore. It will 3.5 hours. So Aurangabad to Bangalore within 5.5 hours or 6 hours. It is now Nagpur to Pune, it take 24 hours. Now it will take less than 6 hours. So its total scenario will change. Now I am talking about Delhi also. Delhi to Dehradun, just within 6 months, it will be possible that you will get Dehradun within 2 hours, Haridwar in 2 hours, the Katra in 6 hours, Amritsar in 4 hours, then Srinagar in 8 hours, Mumbai in 12 hours, Jaipur in 2 hours, Chandigarh in 2.5 hours. Even you can go up to Manali from Delhi with 7 hours. Okay, on that note, I think we have Kartikeya Sharma ji, Rajya Sabha MP with us, and he wanted to ask a specific question on the road building. Thank you, sir. My question was about NH44. I remember जब से छोटे थे, बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि वो एक स्ट्रेच है जो दिल्ली से लेके पानीपत तक, उस पे काम लगातार चला आ रहा है, और वो एक ब्लाइंड स्पॉट भी बन गया जहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। तो क्या कुछ उसके लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया की एक आर्टरी है, पूरे 3-4 स्टेट्स से कनेक्ट होती हैं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। एक्चुअली कठपुतली से, नाम भूल रहा हूँ मुझे जरा, पंजाब हरियाणा की कम जानकारी, एक रोड बना दिया हमने नया ग्रीनफील्ड, और अभी 20,000 पीसीयूज ट्रैफिक इसका जीटी रोड का उधर डाइवर्ट हो गया, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो 40,000 पीसीयूज जाएगा। तो ये जो रोड है, इसका जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर का ट्रैफिक जो गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया जा रहा है, राजस्थान, वो दिल्ली आएगा ही नहीं। तो ये जीटी रोड का 40,000 पीसीयूज का ट्रैफिक विदिन 3-4 मंथ कम हो जाएगा। वो रोड हमने पूरा कर दिया। अभी मैंने राष्ट्रपति जी को इनवाइट कर रहा हूँ उसके उद्घाटन के लिए। दूसरी बात यह है कि इस रोड पर सही में प्रॉब्लम है। इसका कोर्ट में मामला चला, विवाद चले, आर्बिट्रेशन में गए, हम काम नहीं कर पाए। पर अब इस रोड के डेवलपमेंट के लिए हमने काम हाथ में लिया है और काफ़ी कर रहे हैं। अभी एग्जैक्ट मेरे पास कितना, पर हम 2-3 हज़ार करोड़ इस पर खर्चा कर रहे हैं। फिर ये जो दूसरा प्रॉब्लम दिल्ली का है, जो मैं भी फेस करता हूँ, मुझे ज़्यादा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब मालूम नहीं है, वो है धौला कुआं से मानेसर। तो ये रोड भी बहुत ट्रैफिक जाम होता है। तो अभी हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया। मेरा कुछ
जागरूक ठीक नहीं, दिल्ली मालूम नहीं मुझे ज़्यादा, तो गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। वो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से शिव मूर्ति है, वहाँ से हम एक टनल बना रहे, एक T3 पे जाएगा एयरपोर्ट पर अंदर से, और एक टनल आएगी बसंत विहार। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनने से इसका ट्रैफिक आधा होगा, ऐसा मुझे ऑफिसर कह रहे हैं। पर मैंने अब ये निर्णय किया है, उसका स्टडी चालू है, कि धौला कुआं से उतरने के बाद हम जैसे उतरते हैं, जहाँ से चढ़ते हैं, वहीं से हम लोग 2 लेयर 3 लेयर फ्लाईओवर बनाए। अभी जो फ्लाईओवर है वो सिंगल लेन है, जो डायरेक्ट मानेसर जाना है वो ऊपर लेवल पर जाएगा और डायरेक्ट चला जाएगा। और फिर और एक कोशिश करूँ कि मानेसर टू धौला कुआं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवा में चलने वाली स्काई बस, जिसमें 100 150 लोग ऊपर के ऊपर बैठकर चलेंगे, तो उससे ये कम होगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, हर आदमी गाड़ी खरीदता है। हिंदुस्तान में एक एक्सपर्टाइज है पॉपुलेशन बढ़ाने का और ऑटोमोबाइल ग्रोथ बढ़ाने का। मैं शायद डर रहा हूं कि 5 साल के बाद ऐसी स्थिति ना आए कि जितने लोग हैं उससे गाड़ियां ज्यादा हो गई। ये हर घर में 3 लोग और 5 गाड़ियां, और दिल्ली में तो आप पार्किंग ही नहीं करते, पूरे रोड जैसे हमने रोड आपके लिए बनाया पार्किंग के लिए, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा होगा तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह कहता हूँ, इस पर आप कार्यक्रम करिए। मैंने अभी बेंगलोर में वॉल्वो का स्लीपर कोच लॉन्च किया, और वो इतना सुंदर है, 15 मीटर की बॉडी है, जैसे AC 2 टायर में बैठते उतना अच्छा था। अब मैंने उनको कहा कि आप स्लीपर कोच के साथ साथ बिजनेस क्लास कोच तैयार करो, ऐसे सो के लैपटॉप देखकर, जैसे दिल्ली से जयपुर जाना है तो ये पूरा ऐसा सो के जाएगा, एयर सस्पेंशन ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, हवाई जहाज जैसा कंफर्ट बिजनेस क्लास जैसा होगा। तो यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो भी इलेक्ट्रिक पे चलेगा, तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करेंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा, रोड का ट्रैफिक जाम भी कम होगा। हम जितने रोड बना रहे हैं उतना ट्रैफिक बढ़ते ही जा रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं उसको मर्यादा है। तो ये फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 16 लाख करोड़ का है, तो हमको इसको कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल, गुड कंफर्ट्स अगर बनाया तो लोग जाएंगे उसमें। सर, इसी पे आई वांटेड टू आस्क यू, क्योंकि देयर वर 2 समिट्स दैट गुप्ता जी had organized, इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन का फ्यूचर क्या है सर इंडिया में? सर ऐसा है कि पहली बात, मैं खुद व्यथित हूं, मैं दिल्ली कम आता हूं, डरता हूं आने के लिए। आज मुझे फिर सुबह इन्फेक्शन हो जाता है। ये इतना पोल्यूशन है यहाँ कि मैं नागपुर के नज़दीक मेरी खेती है, वो गांव में मैंने घर बनाया, वहाँ ऐसा लगता है कि मैं रसगुल्ले खा रहा हूँ, ऐसी हवा मिलती है वहाँ। और यहाँ आने के बाद पूरे दिन में इतना आप लोगों का लाइफ कम हो रहा है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन इज द सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दिल्ली का है। तो अब इसके लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल का 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, डीजल, पेट्रोल और गैस का। ये जो इकोनॉमी है, इससे हमारी इकोनॉमिक चैलेंज भी है, और इसलिए हमने ये तय किया कि हमारा किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बने। और मैं 2004 से, ये मनीष को पता होगा, मैं इथेनॉल कहता था, बीजेपी का प्रेसिडेंट था, तब का लोग मुझे बोलते क्या इथेनॉल बोल रहे हैं। अगर उस समय मेरी बात मैं कन्विंस कर सकता तो आज स्थिति नहीं आती। अभी हम लोग पेट्रोल में 20% इथेनॉल डाल रहे हैं, और हमारे देश में इस साल 40,000 करोड़ की बचत हुई, और ये पैसा जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी में गया है। अब देखिए हमारे देश में कॉर्न सरप्लस, गेहूं सरप्लस, चावल सरप्लस, शुगर सरप्लस, हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है। हमारी कमर्शियल प्राइस MSP से नीचे चली गई है, इतना सरप्लस है। और हरियाणा में, पंजाब में रेलवे स्टेशन पर चावल हमने रखा। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड फ्यूल सेक्टर। तो पहले फूड वर्सेस फ्यूल झगड़ा करते थे, पर परिस्थितियां बदली है, और अभी हमने शुगर केन जूस से इथेनॉल, फिर सी मोलाइसिस से इथेनॉल, फिर BAV मोलाइसिस से इथेनॉल, फिर उसके बाद हमने कॉर्न, राइस, ब्रोकन राइस, फूड ग्रेन से इथेनॉल, और अभी हमने आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बनाया। और ये इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा विषय है कि हमारे देश में खूब वेस्टलैंड पड़ी है। आपको याद होगा मोहन धारिया जी हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, अन्ना कहते थे उनको, उनने वेस्टलैंड पर एक रिपोर्ट दिया है भारत सरकार को।
ये वेस्ट लैंड ऐसी पड़ी, आप हेलीकॉप्टर से देखोगे तो एक भी पेड़ नहीं लगता, ऐसी पड़ी हुई है। वहाँ हम बाम्बू लगाए और बाम्बू से अगर हम बायो इथेनॉल बनाएंगे तो अभी हमने नई गाड़ियाँ लाई है, हीरो, बजाज और टीवीएस। इन्होंने टू व्हीलर जो है वो पूरे टू व्हीलर फ्लेक्स इंजन पर लाए। फ्लेक्स मीन्स 100% इथेनॉल। अभी टोयोटो, विक्रम किर्लोस्कर जी का देहांत हुआ, मैं परसों बंगलोर में उनके घर गया था। उनने मुझे प्रॉमिस किया था कि 1-1.5 महीने में टोयोटो की गाड़ी आएगी। उनकी एक कैमरी गाड़ी थी, वो क्या थी कि पेट्रोल पर 40% इलेक्ट्रिसिटी तैयार करके चलती थी। अब उनकी गाड़ियाँ 100% बायो इथेनॉल और 40% इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी। अब इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल का इसमें अंतर था। एक दिन मुझे पता चला कि रशिया में कोई रिसर्च हुआ है, तो मैंने उन साइंटिस्ट लोगों को यहाँ बुलाया, मैंने प्रेजेंटेशन लिया, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने पुरी साहब को, इंडियन ऑयल के चेयरमैन वैद्य और राम कुमार जो हमारे फरीदाबाद के रिसर्च लेबोरेटरी, उन तीनों को बुलाया, प्रेजेंटेशन हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि इट्स अ वेरी गुड आइडिया बट वी फील इट वेरी डिफिकल्ट। तो मैंने उनको हिंदी में कहा उनके सामने कि भाई गाजर की पुंगी है, बजाओ, बचती है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। बाद में 3 महीने ट्रायल हो गई और ये प्रूव हो गया कि इथेनॉल का माइलेज और पेट्रोल का सेम होगा। अभी 1 लीटर इथेनॉल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml, 1 लीटर पेट्रोल इक्वल टू 1 लीटर 300 ml इथेनॉल एज पर एज कैलोरिक वैल्यू था। अब वो सेम हो गया। अब इथेनॉल का रेट है 60 रुपए और पेट्रोल का रेट है 120 रुपए, और उसमें भी 40% बिजली आएगी, तो आप समझ लो कि आपको 25 रुपए लीटर से पेट्रोल मिला, इस भाव में वो एवरेज मिलेगा। तो इकोनॉमी बचेगी, इन्वायरमेंट, इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है वो बचेगा। तो पहली बात इथेनॉल। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हाइड्रोजन की है, हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। जो पेट्रोलियम से निकलता है वो ब्राउन हाइड्रोजन है, जो कोयले से निकलता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, और जो पानी से, ऑर्गेनिक वेस्ट से या बायोमास से निकलता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। अब जो पानी से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करते हैं उसमें 70% कॉस्ट पावर की है। तो आइडिया ये है कि रूफटॉप, ये जगह है, या ऊपर में रूफटॉप लगा देना, और इधर कुआं है या जो टॉयलेट का पानी होगा वो शुद्ध करना, वो पानी को लाकर पावर यूज करके, इलेक्ट्रोलाइजर 1 करोड़ 1.25 करोड़ का है, उसको लगाकर हाइड्रोजन निकलेगा। और इथेनॉल का जनरेटर मैंने वो भी पहला बनाया है, मैं इसकी पैशन है मुझे, किर्लोस्कर ने। तो वो 60 रुपए लीटर है, डीजल 110 रुपए है। तो उसी पे वो कॉम्प्रेस करके 500 बार पर गाड़ी में भर लो, ट्रक चलेगी, बस चलेगी, हवाई जहाज चलेगा, इवन फार्मास्यूटिकल, केमिकल, स्टील इंडस्ट्री चलेगी। और हम आज एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है, और अब मोदी जी ने जो हाइड्रोजन मिशन तैयार किया उसमें हम हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश होंगे, हमारा फ्यूल वर्ल्ड में जाएगा। तो अब इसमें काफी रिसर्च हो रहा है, और मेरा जो प्रयास है कि ये सब किसान जो है ये अन्नदाता के बजाय ऊर्जादाता बने। बड़े बड़े उद्योगपति हाइड्रोजन तैयार करने के बजाय, किसी के पास कुआं है, पानी है, वो एक प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज प्लांट लगा देगा, ऊपर सोलर लगाएगा, हुआ। पर इसमें अभी ब्रेक थ्रू आया। मैं परसों बंगलोर गया था, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, तो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने बायोमास से हाइड्रोजन बनाया। तो कोई भी बायोमास, नारियल का वेस्ट है, ये कॉटन का वेस्ट है, और अब इसकी कॉस्ट जो हम लोग 70% पावर यूज करते हैं पानी से, तो वो आती है 300 रुपए किलो। और ये जो विशेष रूप से बायोमास के साथ ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे आपका ये कचरे का कौन सी पहाड़ है, गाजीपुर ना, दिल्ली में। अब वो गाजीपुर के बाजू में वो कचरा बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकाल कर हाइड्रोजन तैयार होगा। तो दिल्ली में पूरी बसें, ट्रक, गाड़ियां, उसी पे इतना कचरा पड़ा हुआ है, तो उसको सैग्रीगेट करके हो सकता है। तो हम लोग कचरे से, वेस्ट वाटर से, सीवेज वाटर से हम हाइड्रोजन बनाएं, और मुझे लगता है यही फ्यूचर है। हमारे लोग बहुत स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर की फैक्ट्री मैंने अभी इनॉग्रेट करने का मौका मिला। वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइजर, और हमारे स्टार्टअप यंग इंजीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि 7-8 साल में, 10 साल में ऐसा होगा कि हिंदुस्तान ये 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करने वाला देश है। वर्ल्ड का 30% पेट्रोलियम प्रोडक्ट हिंदुस्तान में आता है, और ये पोल्यूशन होता है पूरा। तो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के बजाय ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे, और हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रांग बनेगी, लोगों को भी रोजगार मिलेगा, और किसान भी एक प्रकार से इसमें प्रगति और विकास की ओर जाके आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो निश्चित निर्माण होगा।
Nitin ji, I know that Kaustubh told me you are running short of time. My last question, Rishabh ji, if it is okay, my last question to you is कि जिस तरह से अभी ये हालात हैं, ज्योतिर्मठ, जोशीमठ को if we see beyond Joshimath, cracks are concerned and you are building a road and road construction in the hilly terrain. How difficult and what challenges you foresee after this? देखिए, ये जियोलॉजिकल विषय है। रोड बनाने से या कोई पावर प्रोजेक्ट बनाने से आज एकदम ये कहना कि उसके कारण ये हुआ, ऐसा नहीं है। जियोलॉजी में जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, क्रिस्टलोग्राफी, जियोफॉर्मोलॉजी, ऐसे 5-4 प्रकार है। जो रॉक्स होते हैं उसके 10 प्रकार है। टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपिटाइट, ऑर्थोक्लेट्स, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट मटेरियल। जैसे महाराष्ट्र में वो डेक्कन बेसाल्ट है, और ये जो है फ्रॉजिल है बहुत, ये बहुत ही मुश्किल वाला स्टार्टा है। यहाँ डिटोरेशन हो रहा है, इसका अध्ययन किया जा रहा है, और ये क्या पहाड़ी पर लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आज कोई कमेंट्स नहीं करूंगा कि किसके कारण क्या है, पर इसके बारे में अध्ययन करके, आज अध्ययन के बिना ये 4 धाम के कारण हुआ, ये कोई पावर प्रोजेक्ट, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। इसके लिए एक्सपर्ट लोग, आईआईटी के इंजीनियर्स, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट सब मिलकर अध्ययन करें, और निश्चित रूप से हम इसका समाधान ढूंढें। और अभी देखो, जब बादल फटा था केदारनाथ की, इसमें कितने लोग मर गए। 2000 तब नदी के पैरेलल रोड था, बाढ़ आता था, लोग बह गए, मर गए, हजारों लोग मर गए। तब मैंने मंत्री बनने के बाद तय किया कि नया रोड बनाना चाहिए, ऑल सीजन रोड। और ये ऑल सीजन रोड जो है, ये 12,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हम बना रहे हैं, जिससे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आप साल भर जा सकोगे। उतना टूरिज्म बढ़ेगा, उत्तराखंड के लड़कों को रोजगार मिलेगा, और हम दर्शन कर सकेंगे। और वहाँ रोपवे भी बना रहे हैं हम केदारनाथ में, फिर हम मानस सरोवर का रोड बना रहे हैं। तो रोड से वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। अब नेपाल और चाइना में जाने की जरूरत नहीं, हम पिथौरागढ़ से 90% काम हमने मानस सरोवर के रोड का पूरा किया। तो मुझे लगता है कि एकदम डेवलपमेंट पर ब्लेम लगाकर भी चर्चा करना भी उचित नहीं होगी। इसका अध्ययन भारत सरकार कर रहा है, लोगों के प्रति हमें बहुत सहानुभूति है, और निश्चित रूप से इसके तांत्रिक कारणों का भी अध्ययन किया जाएगा, और इसके ऊपर निश्चित रूप से उपाय ढूंढे जाएंगे। Okay. Nitin ji, thank you very much, sir, for joining us.